सर, आज के पुलिस कमेमोरेशन डे के दिन आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, 1959 के शहीदों को भी हम याद करते हैं, शहीद करम सिंह को भी याद करते हैं, और 2024 के हमारे इंस्पेक्टर नामग्याल को भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और पिछले वर्ष जो 191 पूरे जो हमारे पुलिस बल के जवानों की शहादत हुई है, उनके प्रति हमारी नमन है। और उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के कारण से अपना बलिदान दिया है। जो बलिदान हमारे लिए हमेशा से स्मरण रहेगा, और मुझे विश्वास है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन बलिदानों को याद करेगी। आज हम इस लद्दाख में जो बॉर्डर स्टेट है, बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। दो दुश्मन देश हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जवान जिस प्रकार से अपने आप को वहाँ पर हमेशा से कायम रखते हैं, मेरा उनको सलाम है। और मैं ये चाहता हूँ कि इन शहादत को जो हर वर्ष हम उनका जिनका दिन मनाते हैं, उनके परिवारों के प्रति भी जो उनका समर्पण है, उसको मैं सलाम करता हूँ। जब हम मार्टियर्स की बात करते हैं सर, आपको ज्ञात होगा कि 4 यूथ्स का डेथ हुआ है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उनको मार्टियर्स का दर्जा देंगे? देखिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों ने मुझे लगता है कि गलत बहका करके उन जवानों का जो ये बलिदान हुआ है, ये अपने आप में आगे से ना हो, इसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और कंपनसेशन में कोई एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं? इस पर एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, इस पर कुछ ना कुछ बात। सर, आपका जो 24 तारीख के बाद स्टेटमेंट है, उससे भी काफ़ी लद्दाख के लोग नाराज है कि यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल का एक्टिविटीज, इसके बारे में क्या? देखिए, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार इसके प्रति, हमने जुडिशियल इंक्वायरी भी बिठाई है, तो चीज़ें हैं सामने निकल करके आ जाएंगी। सर, काउंसिल का इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अभी 31 अक्टूबर को उसका कार्यकाल समाप्त है, तो उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा आपके सामने आ जाएगा। All the dignitaries, officers of UT administration, officers and colleagues of Ladakh Police, retired officers of Ladakh Police, and media fraternity. Today, we gather with pride and gratitude to observe Police Commemoration Day, a day dedicated to the brave men who laid down their lives in the line of duty. Every year on this day, we remember their courage, their sacrifice, their unwavering commitment to protecting our nation and its citizens. On October 21st, 1959, at a height of 15,300 feet above sea level, in the temperature below zero, at the hot springs of eastern Ladakh, 20 Indian soldiers were attacked by a heavily armed Chinese troops in Hot Spring, Ladakh, and 10 valiant policemen, CRPF men, martyred in this uneven confrontation while defending the integrity of our motherland. 7 others, who were also imprisoned, later managed to escape from the Chinese troop. On November 28, 1959, the Chinese troops handed over the dead bodies of the martyred policemen to India. Their cremation was held with full police honor at the hot spring, located at Thoksalu, at the extreme Indo-China border in the eastern Ladakh. Ever since that incident, October 21st is celebrated as a Police Commemoration Day in remembrance of our martyrs, of police personnel all over India who attained martyrdom while on duty. This year, 191 security personnel from different police, paramilitary force have sacrificed their lives on the duty from 1st September 2024 till 31st August 2025. In Ladakh, Inspector Tsewang Namgyal made the supreme sacrifice on 7 September 2024 during the search and rescue operation in Indus River. The martyred officer was reportedly one of the most fearless and dedicated officers of Ladakh Police. In recognition of his immense and invaluable service to the people of Ladakh and the integrity of the nation, Inspector Tsewang Namgyal was posthumously conferred
with the State Award for Bravery on the occasion of Republic Day 2025 by the administration of Union Territory of Ladakh. His extraordinary contribution and brave spirit shall forever be remembered and honored with deep respect and gratitude. शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर साल मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज के इस अवसर के मुख्य अतिथि यूटी लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंद्र गुप्ता जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूटी लद्दाख डॉक्टर एसडी सिंह जमवाल साहब, लद्दाख पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ, आरपीएफ व अन्य उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी महोदय, लद्दाख पुलिस के वीर शहीदों के आदरणीय परिवार के सदस्य, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और लद्दाख पुलिस के जवान, हर साल की तरह आज भी 21 अक्टूबर का पुलिस कमेमोरेशन डे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स लेह में आदर व सत्कार के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1959 में सीआरपीएफ के 10 जांबाज बहादुर जवान लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीन की सेना के हमले में वीर गति प्राप्त हुए थे। उन्हीं की वीरता और बलिदान की याद में ये दिन पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। मैं आप आवेदन करता हूँ लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एसडी सिंह जमवाल साहब को कि वो मंच पे आके पिछले साल के वीर शहीदों के नाम पढ़ें। अपने उन वीरों को खिराज हकीकत पेश करने के लिए जिन्होंने इस देश की सुरक्षा, उसकी एकता और अखंडता के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। जैसे मेरे कलीग्स ने पहले बता ही दिया कि आज का दिन हम उन 10 बहादुर सीआरपीएफ के जवानों के याद में मनाते हैं पूरे देश में, पुलिस डे के नाम से, पुलिस कमेमोरेशन डे के नाम से, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 में हॉट स्प्रिंग जो हमारा ईस्ट में बहुत ही फार-फ्लंग एरिया है, वहाँ पे अति दुर्गम स्थितियों में लड़ाई करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सर, मैं आपको बताता चलूं, पिछले महीने मैं हॉट स्प्रिंग गया था और पेंगोंग से जब आप आगे जाते हैं तो लास्ट हमारा विलेज आता है फोबरांग। फोबरांग विलेज से हमें मर्समिकला की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो 18,341 फीट की हाइट है, और उसको क्रॉस करके बहुत ही रगड़ टफ एरियाज के बाद में हमारा सोक्सालू प्लेन्स आते हैं, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग जो है वो प्रेजेंट है। सर, इस बार जब मैं गया तो मुझे एक बुजुर्ग मिले वहाँ पे, जिन्होंने उस टाइम जो 59 का जो एक्शन हुआ था तब वो एक यंग मैन थे, उन्होंने एज ए पोर्टर का काम किया था। उनके मुताबिक वो वक्त था जब वहाँ पे इवन की म्यूल्स नहीं थी, आपके जो हमें सामान ढोने के लिए खच्चर वगैरह वो भी नहीं थी, और उन लोगों को जो एबल बॉडीड लोग थे उनको मोबिलाइज किया गया था लॉजिस्टिक्स लेने के लिए। और कहते हैं कि 4 दिन की चढ़ाई 4 दिन लगते थे सिर्फ आपको मर्समिकला क्रॉस करके सोक्सालू की प्लेन्स में एंटर करने में, और वहां पे उस विकट परिस्थिति में काम करना। 1959 में हम समझ सकते हैं सर, सीआरपीएफ जो ट्रूप्स हैं वो इतने हाई आल्टीट्यूड के लिए नहीं बनी है सर, इनका नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर, क्योंकि देश की उस वक्त जरूरत थी। उन्होंने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में जो काम करते हैं उससे बढ़ के परफॉर्म किया। 15,300 फीट की हाइट पे, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में चाइना को के दांत खट्टे किए। 10 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद कुछ लोग जो थे वो चाइना वालों ने पकड़ लिए, बाद में उनको फिर छुड़ाया गया। एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट की अपने बलिदान देके कि किस तरह लाइन ऑफ ड्यूटी में आपको देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को प्राण न्यौछावर करना अगर हो तो वो भी कम है। प्रिय अधिकारीगण, जवानों और सम्मानित अतिथिगण, मादरे हिंदो सतां ना चीज तोहफा कर कबूल, खून से लथड़ा हुआ अपना ही सर लाया हूं मैं। इस प्रकार की भावना को लेकर के आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। आज का ये दिवस उन सभी वीर पुलिस कर्मियों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं लद्दाख प्रशासन की ओर से
देश भर के सभी शहीद पुलिस कर्मियों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुलिस स्मृति दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, ये हमारे कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण की भावना को दोहराने का दिन है। आज हम उन परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जिनके प्रियजन राष्ट्र की सुरक्षा और जनसेवा के लिए शहीद हुए हैं। इस वर्ष देश भर के विभिन्न पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के 191 जवानों ने अपने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सब उनका सम्मानपूर्वक स्मरण करते हैं। लद्दाख पुलिस के वीर इंस्पेक्टर श्री स्वांग नामग्याल का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सिंधु नदी में खोज एवं बचाव अभियान के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता, उनकी निष्ठा, जनसेवा की भावना लद्दाख पुलिस के इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी। गणतंत्र दिवस 2025 पर उन्हें मरणोपरांत राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। यह लद्दाख के लिए एक गर्व का विषय है। मैं लद्दाख पुलिस की सराहना करता हूं, जो पुलिस महानिदेशक श्री एस.डी. सिंह जम्वाल के नेतृत्व में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने तथा जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। लद्दाख जैसे संवेदनशील और भौगोलिक दृष्टि से कठिन क्षेत्र में पुलिस बल ने अपने पेशेवर दक्षता, अनुशासन और जनसंपर्क की भावना के साथ कार्य किया है। ये वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं ये मानता हूँ कि जनता का विश्वास बनाए रखना, समाज में शांति और सौहार्द कायम रखना तथा हर नागरिक तथा उस तक न्याय और सुरक्षा भावना पहुंचाना पुलिस का सर्वोच्च कर्तव्य है। और मुझे गर्व है कि लद्दाख पुलिस इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। आज जब हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, यह आवश्यक है कि हम सभी पुलिसकर्मी उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य के प्रति समर्पण, जनता के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा ही सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। मैं लद्दाख पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों से आह्वान करता हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी को उसी समर्पण और पेशेवर निष्ठा के साथ निभाते रहें, जिससे ये बल और अधिक सशक्त और जनहितैषी बने। मैं लद्दाख के युवाओं को विशेष रूप से अपील करता हूं कि वे अपने जीवन में अनुशासन, निष्ठा और सेवा की भावना को अपनाएं। आप सभी लद्दाख के लिए भविष्य के संरक्षक हैं और आपके प्रयास ही इस प्रदेश की सुरक्षित, सशक्त और प्रगतिशील बनाएंगे। शिक्षा, योग्यता और सहयोग की भावना से लद्दाख के विकास में योगदान हम सब मिलकर के दें। इस अवसर पर मैं लद्दाख पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के परिजनों के प्रति भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उनका सहयोग और धैर्य ही हमारे सुरक्षा कर्मियों को मजबूत बनाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के प्रति, जिसको हम अपनी मां मानते हैं, ये कहा है, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब व बंगाल इसके दो कंधे हैं, विंध्याचल इसका कटी है, यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। और हमारे मरने के बाद भी अगर गंगा को हम कान लगा करके सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इस प्रकार से मैं आपके समर्पण को, आपके त्याग को, आपकी तपस्या को नमन करता हूं। और जिस प्रकार से हमारे जवानों ने एक शहादत दी है, अंत में मैं यही कहूंगा, सरफिरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करूं,
सरफिरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदुस्तां के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो आशिया सैयाद का, ये शररबाजो तेरा दिल में शरर पैदा करो। जय हिंद, जय भारत।